Hello students, good morning. Students, today is 7th December 2020. Your recapitulation chapter 4 factors and multiples was going on. In the previous class I have finished recapitulation of section A of worksheet. Today I want to start section B of worksheet. So in section B, question number 1 has been given. 3 bells ring at 2 seconds, 3 seconds and 5 seconds interval. Okay. After how many seconds will they ring at the same time? It means 3 bells हैं जो 2 सेकेंड 3 सेकेंड्स और 5 सेकेंड के इंटरवल पर बजती हैं. कितने सेकंड बाद वो सब बजेंगे, यानी कि आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स विल दे रिंग एट द सेम टाइम, कितने समय बाद वो सब एक साथ बजेंगे, यानी ऐसा कौन सा टाइमिंग होगा जब वो एक साथ बेल बजेंगे. सो लिसन, here timing has been given here 2 seconds, 3 seconds and 5 seconds. So only you will find out the LCM here. So when you will got the LCM, so that will be your answer. So duration has been given 2 seconds, 3 seconds and 5 seconds. आपको इसका LCM निकालना है. Then 2 सिर्फ 2 से जाएगा, 3 नहीं जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 5 नहीं जाएगा 3 से, then 5 से 5 से जाएगा. Okay. So therefore bell will ring at the same time is equal to 2 into 3 into 5. 2 3s are 6, 6 into 5, 6 5s are 30. It means 6 into 5 is equal to 30 what? Seconds. So that is your answer. It means आपकी जो बेल है वो सेम टाइम में कितने समय बाद बजेंगी? After 30 seconds they will ring together. Okay. Clear students? Next question has been given here. Question number 3. The product of two numbers is 375. यानी कि 2 numbers है जिनका प्रोडक्ट कितना है? 375 है. If LCM is 75, find the HCF. So students, that question I have already solved to you. हमने ये क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी सॉल्व कराया था. Okay, recapitulation में. So in this you know about that one formula you will be applicable. ये formula इसमें applicable होगा. First it has been asked about the HCF. So we will suppose let us HCF is equal to X. हमने क्या माना? HCF क्या है? X है. So what is the formula? Product of two numbers is equal to product of their LCM and HCF. यानी क्या, अगर आप 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, सो उसका मल्टीप्लिकेशन इक्वल किसके होगा? उन 2 प्रोडक्ट के LCM और HCF के. ओके. सो हियर द प्रोडक्ट हैज बीन गिवन अबाउट दैट 375, यानी 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी दिया है. देन द फॉर्मूला इज प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF. सो LCM की डिजिट आपको दे रहा है 75, नंबर आपको दिया 75 एंड HCF नहीं दिया. सो हमने क्या माना था? यहाँ x माना था. सो वी विल प्लेस द वैल्यू ऑफ HCF एज लाइक x. हम x की तरह ऐसे रख देंगे, x रख देंगे यहाँ पर. ओके. 375 इज इक्वल टू 75 इंटू एक्स. आप इसको क्या कह सकते हो? और 75 इंटू एक्स इज इक्वल टू 375. क्लियर? नाउ you can see here 75 को हम x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन लेफ्ट हैंड साइड. व्हेन इट विल बी ट्रांसफर टू द राइट हैंड साइड, सो ये क्या हो जाएगा? डिवीजन हो जाएगा. इट मींस x इज इक्वल टू 375 डिवाइडेड बाई 75. आप क्या करोगे? 75 से 375 में डिवाइड कर दोगे. सो लुक हियर हाउ. So when we will divide 375 with 5, so it will be divisible by 5 times. It means 75 5s are 375. So it means you have got the value of x. X is equal to 5, and you have suppose what is x? HCF. It means you have written here. You can see it here. Let us HCF is equal to x. It means आपने x किसको माना था? HCF. So here you will write, therefore you will write the answer HCF is equal to 5. Clear students? Now students, see the section C. Question number 1 has been given here. There are 527 pencils, 646 erasers and 748 sharpeners. First of these are to be arranged in packets containing the same number of items. Okay.
Then find the greatest number of items possible in each packet. How many packets are formed? Okay, so look here. So here you have find out the greatest number of item possible in each packet, यानी कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसमें मैक्सिमम कितने आइटम किसी एक पैकेट में जा सकते हैं एंड कितने पैकेट आप फॉर्म करेंगे. ओके, सो पैकेट में जो आपके आइटम्स है वो क्या है, सेम नंबर से अरेंज है. सो लिसन स्टूडेंट्स, फर्स्टली you will find out the HCF of these items. It means 527 pencils है, 646 erasers है and 748 sharpeners हैं. इनका आप क्या फाइंड आउट करोगे, HCF फाइंड आउट करोगे. ओके, प्राइम फैक्टर्स ऑफ फर्स्ट नंबर हैज बीन गिवन हियर 527. सम 527 का फर्स्टली हम क्या फाइंड आउट करेंगे, प्राइम फैक्टर. सो लुक हियर हाउ 527 it will be resolved by firstly 17. okay, 17 से डिवाइड करोगे. सो लुक हियर हाउ कैन यू गॉट द नंबर 17 से आपने 527 में डिवाइड किया. 17 3 जा 51, 52 में से आपने 51 सब्ट्रैक्ट किया, 1 बचा, 7 उतारा, 17 1 जा 17, यानी कि आपका आंसर क्या है 31. सो इट मीन 17 को आप 527 में डिवाइड करोगे सो 31 आएगा. एंड रिमेंबर 31 will be only divisible by 31. So 31 ones are 31. So prime factors of 527 is equal to 17 into 31. आपको प्राइम फैक्टर क्या मिला, 527 का प्राइम फैक्टर आपको मिला 17 into 31. Now another number has been given related on the erasers, that is 646. So now you will find out the prime factors of 646. अब आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर 646 का फाइंड आउट करेंगे. सो हियर देयर इज नो स्पेस, तो हम नेक्स्ट पेज में इसको फाइंड आउट करते हैं. रफ कॉलम हम यहाँ ड्रॉ कर ले रहे हैं. ओके, सो 646 यू नो अबाउट दैट इट इज अ इवन नंबर, लास्ट में 6 है तो इट मींस इट विल बी डिविजिबल बाय 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. सो यू हैव गॉट द नंबर 323. 323 विल बी डिविजिबल बाय 17 ओनली. 323 जो होता है वो आपका सिर्फ 17 से डिवाइड होगा. सो लुक हियर हाउ कैन यू डिवाइड इट हियर. 17 से 323 आप डिवाइड करेंगे. 17 1 जा 17, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 में 7 गए, 5, 3 में हमने 1 दे दिया था, 2 बचा, 2 में 1 गए 1 3, 17 9 जा 153. ओके, सो वी हैव गॉट 19. 19 सिर्फ 19 से डिवाइड होता है, सो 19 1 जा 19. सो यू हैव गॉट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 646, दैट इज 2 into 17 into 19. सो हियर यू विल राइट 2 into 17 into 19. नाउ the third item is sharpeners, and the how many number of sharpeners has been given, 748. So here we will write the prime factors of 748. आपको 748 जो शार्पनर दिए हैं आपको इसका भी प्राइम फैक्टर्स निकालना पड़ेगा. सो लुक हियर हाउ 748 स्टूडेंट्स, यू कैन सी दिस इज द इवन नंबर. सो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8. नाउ अगेन इट विल डिविजिबल बाय 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14. Now you can see 187 has been given here. 187 will be divisible by 11. 11 1 जा 11, 11 7 जा 17, and 17 सिर्फ 17 से डिवाइड होता है. So you have got the prime factors of 748 is equal to 2 into 2 into 11 into 17. So here you write 2 into 2 into 11 into 17. Clear students? So after that you have got the factors, prime factors. So we will find out the common factors here. So common factor is equal to, I have find out that 17 is common here. Here 17 फर्स्ट नंबर में भी दिया है, सेकंड में भी दिया है, थर्ड में भी दिया है. तो 17 क्या हमारा कॉमन फैक्टर है. एंड ओनली दैट वन सिंगल नंबर इज अ कॉमन फैक्टर, सो दैट इज योर HCF. बट आपको यहाँ HCF नहीं लिखना है, इतना बेटा याद रखिएगा. इन द क्वेश्चन इट हैज बीन टोल्ड अबाउट यू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ आइटम पॉसिबल इन ईच पैकेट. आपको ये बताना है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ आइटम बताने जो एक पैकेट में या हर एक पैकेट में है. सो दैट इज द 17 आइटम. सो हियर यू विल राइट therefore greatest number of items possible in
each packet is equal to 17. क्लियर? इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे हैं. अनदर क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड अबाउट दैट हाउ मेनी पैकेट्स आर फॉर्म्ड. आप कितने पैकेट्स को फॉर्म करेंगे, कितने पैकेट्स आप बनाएंगे. सो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले टोटल आइटम्स निकालने होंगे. ओके, फर्स्ट आंसर तो आपका आ गया, यानी एक पैकेट में आपके मैक्सिमम कितने आइटम्स जा सकते हैं, 17. सो नाउ यू विल फाइंड आउट द टोटल आइटम्स. फर्स्टली टू फाइंड आउट द कितने पैकेट आप फॉर्म करेंगे, इसके लिए आपको फर्स्टली क्या टोटल आइटम्स निकालने होंगे. टोटल आइटम्स इक्वल टू 527 पेंसिल्स दिया है, 646 आपको क्या दिया है, इरेजर्स दिया है, एंड 748 शार्पनर्स दिए हैं. ओके, सो नाउ यू विल ऐड इट. इट मीन्स 527, 646 and 748 you will add. Okay, 7 6 13, 13 and 8 21, 21 का 1 here, 2 will be carry forward, 2 2 4, 4 4 8, 8 4 12, 12 का 2 here, 1 will be carry forward, 1 plus 5 6, 6 plus 6 12, 12 plus 7 19. So you have got the number, the total of the items is equal to 1921. Here we will write 1921. Okay, so in the question it has been asked about that how many packets are formed. So here we will write therefore packets formed is equal to total number of items 1921 in 1925. एंड यू नो अबाउट दैट व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ आइटम्स पॉसिबल इन ईच पैकेट. आपके कितने आइटम्स ऐसे हैं जो पॉसिबल है एक पैकेट में जाने के लिए, दैट इज 17. आप क्या करेंगे, 1921 में 17 से डिवाइड कर देंगे. ओके, सो लुक हियर हाउ कैन वी डिवाइड. हम यहीं रफ खींच ले गए क्योंकि हमारे रफ कॉलम यहाँ पर फिल हो गया है. सो 17 से हम 1921 में डिवाइड करेंगे. 17 बन जा 17, 19 में आप 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, देन अगेन 2 लिखेंगे, आप नोट डाउन करेंगे. सो 17 बन जा 17, 22 में आप 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गॉट 5. ओके, एंड 1 यू विल बी नोटेड डाउन. 17 3 जा 100, सॉरी 17 3 जा 51. सो यू हैव गॉट द आंसर 113. सो इज हियर यू विल राइट 113. सो इन द आंसर यू विल राइट द आंसर क्लियरली. फर्स्ट पॉइंट, greatest, first point, that is the first answer, greatest number of items possible in each packet is equal to 17. And the second answer is, second question has been asked about that how many packets are formed. So here you will write packets formed is equal to 113. क्लियर स्टूडेंट्स, आई थिंक ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा. फिर भी इफ यू हैव एनी डाउट देन स्टूडेंट्स यू कैन आल्सो आस्क द क्वेरी विद मी. नाउ स्टूडेंट्स सी क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस सेक्शन. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हैज बीन गिवन टू मेक द नंबर 256, देन स्टार हैज बीन गिवन हियर 03 डिविजिबल बाय 3, स्टार शुड बी रिप्लेस्ड बाय विच डिजिट. यानी आपको ये नंबर बताया है जिसमें एक नंबर के डिजिट में स्टार लगा है और आपको स्टार की वैल्यू प्लेस करनी है, एंड दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3. So students, for this solution it is necessary to remember the divisibility rule regarding 3. It means आप 3 से किस नंबर्स को डिवाइड कर सकते हो, आपको ये रूल पता होने चाहिए. ओके, सो लिसन केयरफुली. You know about that if the digits of any number will be divisible by 3, so that number will be divisible by 3, otherwise no. Okay, so here you can see about that. First you will write here number is equal to 256, then star, then 03. Okay, sum of the digits of number is equal to 2 plus 5 plus 6 plus star, स्टार की वैल्यू नहीं दी है, देन प्लस 0 प्लस 3. ओके, नाउ स्टार छोड़ करके जो भी हमारे न्यूमेरिक के नंबर हैं वी कैन एड इट. 2 plus 5 7, 7 plus 6 13, 13 plus 0 13, and then 13 plus 3 16. It means you have got 16 plus star.
ओके, यानी 16 है, देन आपका क्या है, ये स्टार की वैल्यू इसलिए हमने यहाँ ऐड नहीं हो पाया बिकॉज स्टार की वैल्यू नहीं दी है। सो अब आप इसमें देखोगे कि हमारा नेक्स्ट इमीडिएट नंबर कौन सा है जो हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। सो यू नो अबाउट द टेबल ऑफ 3 हियर। 3 की आप टेबल पढ़ेंगे, सो 3 5 15, देन 3 6 18, यानी हमारा 15 पहले आ रहा है, 16 के पहले 15 आ रहा है, बट नेक्स्ट डिजिट क्या है, नेक्स्ट नंबर क्या है, 3 6 18। इट मीन्स 18 हमारा नेक्स्ट नंबर है जो 3 से हमारा डिवाइड हो जाएगा। सो आपको यहाँ ऐड करना है। सो कितना ऐड करना होगा कि 16 में हम कितना ऐड करें, सो हमको मिल जाए 18 2। इट मीन्स 18 minus 16 is equal to 2. So here you will write, therefore we will replaced the digit is equal to 18 minus 16 is equal to 2. क्लियर? आपको ये ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर नेक्स्ट डिजिट कौन सी लेनी है जो हमारी 3 से डिवाइड हो जाए। सो नेक्स्ट डिजिट यू विल गॉट 18 बिकॉज 16 दिया है और हमें यहाँ प्लस का साइन लगा है, एडिशन का साइन लगा है। सो नेक्स्ट नंबर 16 के जस्ट इमीडिएट नंबर, जस्ट बाद का नंबर क्या होता है 17, बट 17 हमारा 3 से नहीं डिवाइड होता है। सो हमें ऐसा नंबर लेना है जो 3 से डिवाइड हो, वो भी इमीडिएट वाला। सो 17 के बाद क्या आता है 18। सो 18 हमारा 3 से डिवाइड होता है। सो हम स्टार की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, 18 minus 16 is equal to 2. So we will write the answer. Answer is equal to star should be replaced. Star should be replaced by 2. Clear, students? So students, the recapitulation of chapter 4. Recapitulation of chapter 4. The name of the chapter is Factors and Multiples has been completely finished. Now I will start the recapitulation of chapter 5. The name of the chapter will be fractions. Okay, so look here, this is your chapter 5 fractions. I will start the recapitulation of this chapter, but before starting this chapter, as the name of the fraction, I want to explain about it. What is fraction? This is your chapter, okay, chapter 5 fractions. I want to explain it here. Here one example has been given here about the Bina. Bina has told I ate 3/6 of the pizza, and then Meena told I ate 2/6 of the pizza. यानी कहने का सेंस आपको यहाँ क्या कह रहा है, एक पिज्जा है, ये आपको यहाँ एक पिज्जा का डायग्राम बना हुआ है, इसका 3/6 या आप कह सकते हैं या हाफ। ओके, हाफ पार्ट बीना खा रही है एंड मीना कितना 1/2 खा रही है या 2/6 खा रही है। इसमें मीना ने क्या लिखा है 2/6 एंड 3/6 बीना ने लिखा है। सो हाउ कैन यू सॉल्व इट, हाउ कैन यू राइट इट? विल ऑल्सो ड्रॉ द पिज्जा हियर। दिस इज कंप्लीट पिज्जा। हमने यहाँ एक आपको पिज्जा का डायग्राम बना दिया। ओके, ये हमारा कंप्लीट पिज्जा है। ठीक है, हो सकता है देखने से पिज्जा थोड़ा मुंह में पानी आए जिसको पिज्जा पसंद हो। सो मे बी, सो ध्यान दीजिए, हो सकता है इस बहाने ही आपको समझ में आए। ये हमने एक माना एक कंप्लीट पिज्जा है। ओके, बीना, हम बुक के नाम ले रहे हैं लेकिन एग्जाम्पल अलग तरीके से समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। बीना वांट टू ईट हाफ पीस ऑफ द पिज्जा। हाफ मीन्स द पिज्जा हैज बीन डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। हमने पिज्जा को क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सो टोटल पिज्जा वाज 1। एक पिज्जा हमारा कंप्लीट पिज्जा क्या था 1। हमने इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में। ओके, 1 and 2। सो यानी कहने का सेंस क्या हो गया आपका, टोटल पार्ट आप न्यूमरेटर हो गया। हमारे ऊपर वाले साइड को हम क्या कहते हैं, ऊपर का जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड न्यूमरेटर। ठीक है, एंड जो हमारा अब लोअर साइड होता है दैट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। एंड न्यूमरेटर में हम क्या रखेंगे, हमारा टोटल पार्ट दैट इज 1, एंड डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, जितने पार्ट में हमने इसे डिवाइड किया। ओके, नाउ हम ले लेते हैं इसको और पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, हाउ कैन वी डिवाइड इट, लुक हियर। अब हम मीना का पार्ट लेते हैं 1 2। हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया इसे, 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। एंड इन द एग्जाम्पल ऑफ योर बुक इट हैज बीन गिवन एज लाइक दिस। कितने पार्ट में डिवाइड हो पिज्जा, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में हमारा पिज्जा क्या हो गया, डिवाइड हो गया। हमने 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक एग्जांपल हम अपना लेते हैं। मीना जो है वो पिज्जा कितना है, फुल पार्ट क्या है 1। मीना हैज एट ओनली
one part of that pizza. Okay, so total part is 1. So उसमें से सिर्फ एक पीस, इट मीन्स खाली इतना पीस हो सकता है मीना की तबीयत खराब हो या पिज्जा ना पसंद हो. सो मीना कितना पिज्जा खाती है? सिर्फ एक पीस. Okay, so how many parts of the pizza here? I have find out it here. I want to write it here. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 पार्ट हैं. मीना ने कितना पिज्जा खाया? सिर्फ एक पीस, यानी एक पार्ट. सो एक पार्ट कितना है? पार्ट टोटल 8. यानी क्या? टोटल पार्ट आप लिखेंगे 1 एंड जितने आपने पीसेस किए पिज्जा के वो क्या हो जाएंगे? डिनोमिनेटर उसका कितना, मीना ने कितना पार्ट खाया? 1/8 पार्ट खाया. इफ आई वांट टू टेक दैट एग्जांपल हियर, so here you can see that is the numerator and that is the denominator. So this is the fraction 1/8 and 1/2 this is the fraction. Clear students? Students, आज की क्लास में इतना ही. In the next class I will start that fraction. Okay, I will continue the fractions with the with your books also. Okay, clear students? In the mean duration if you have any doubt students then you can also ask the query with me. One thing more, आप लोगों का आज चैप्टर 4 फिनिश हो गया, रिकैप्चुलेशन आपका कंप्लीट हो गया. इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेक द टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर. ओके, इट मीन्स टुडे इज 7th December. इट मीन्स टुमारो विल बी 8th December. सो ऑन 8th December आई विल टेक द टेस्ट, क्लास टेस्ट of chapter 4 factors and multiples. So be ready for it, and if you have any doubt then students you can also ask the query with me. Okay.